हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। और इस वीडियो में हम बात करेंगे द कंसर्न्स ऑफ स्टूडेंट्स रिलेटिंग टू द ICAI नोटिफिकेशन दैट हैज गिवन एन ऑप्शन टू द स्टूडेंट्स टू ऑप्ट आउट फ्रॉम द July exams. There have been a lot of videos that have been made on the same topic, but today we'll be discussing it in a different way altogether. Okay, so if you really appreciate my efforts, please do like this video and share this because it really motivates me a lot to create more such awesome content for you guys. So let us begin. So the first thing, let us have a quick look at the notification. We have already discussed it in our previous live stream. I discussed the same. So there has been an opt-out option that has been given to the students, and 17th to 20th June, the correction window or the change of center window, it will open for the students, and opt-out window will also open at the same time. IPCC old course attempt has been extended to November 2020 for those who opt in. जो भी लोग ऑप्ट इन करेंगे कि उन्हें एग्जाम देना है, उन्हें फाइनल कॉल जो है उसका वो अभी भी इंस्टीट्यूट के पाले में गेंद है. ICAI विल डिसाइड दैट वेदर दे विल बी अपीयरिंग फॉर द एग्जाम्स और नॉट, एंड दिस विल बी कम्युनिकेटेड इन द जुलाई फर्स्ट वीक. सर एंड मैम, तो ये बेसिक चीज़ें थी नोटिफिकेशन के बारे में. आप सबको अब तक पता चल गई होंगी, आपने पढ़ भी ली होगी नोटिफिकेशन. नेक्स्ट, now what are the gray areas that can be cited from the wordings of the notification itself? तो जो notification के wordings है उसमें से भी कुछ ग्रे चीज निकल के आ रही है. let us look at it. इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन में लिखा है intermediate integrated professional course IPCE old course will be extended for one more attempt, that is November 2020. now what is gray inside it? now let us look at this situation. X एक बंदा है जो कि old IPCC student है, out who has opted in कि भाई मैं एग्जाम लिखूंगा for the exams, and exams are conducted, एग्जाम्स हो जाते हैं, and he fails, अब वो फेल हो जाता है एग्जाम में. can he give again with old syllabus in November 2020? अब उसके लिए तो अटेम्प्ट यहाँ पे बढ़ गया क्योंकि आपने यहाँ पे लिख दिया है सर, तो अब वो क्या दे सकता है एग्जाम पुराने स्कीम ऑफ एजुकेशन के अंदर, पुराने सिलेबस के साथ? क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी के साथ एक दूसरा बंदा है वाई, ओल्ड IPCC का स्टूडेंट है, उसने ऑप्ट आउट कर लिया था एग्जाम्स के लिए क्योंकि आपने उसको ऑप्शन दे दिया. नाउ ही अपीयर्स इन एग्जाम्स इन नवंबर एंड ही फेल्स. नाउ ही विल प्लीड दैट he was not given the benefit of extended attempt. ये problem है सर. Okay, so this is the gray area inside the notification that can be cited directly from the wordings of the notification. तो ये एक problem यहाँ पे है. Next, now the student concerns with the notification, जो notification के अंदर चीज़ें हैं उससे student को क्या problem है, उसमें उन्होंने additionally क्या चीज़ miss की. बहुत सारे student को ये problem है और वाकई में ये problem है बड़ी. CA final old course students, no benefit of extension is given. Now if a student under this category, old course CA final student, if he opts out, then technically he or she is left with only one attempt under the old scheme. So clarity regarding this is also required from the institute, sir and ma'am. Okay, now moving ahead. Now before we discuss the COVID scenes around and for our exams, let us look at things that are going around. ICSE CBSE जो एग्जाम है उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन जो है वो फाइल कर दी गई है कि कैंसिल होने चाहिए CBSE ICSE के एग्ज़ाम्स. तो ये बड़ी न्यूज़ अभी चल रही है. इसके अलावा ICSE एग्ज़ाम बोर्ड ने जो है ऑप्शन दे दिया है स्टूडेंट्स को टू ऑप्ट आउट. ओके, कि वो चाहे तो एग्ज़ाम दें चाहे तो नहीं दें. ये भी एक जो न्यूज़ चल रही है इन दिनों, इस पर भी आप एक बार जाकर के देख लीजिएगा ज़रूर. राइट नाउ व्हाट इज़ देयर इन द पिटीशन? पिटीशन के अंदर ये लिखा है कि सर बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, IITs ने अपने एग्जामिनेशंस कैंसिल कर दिए. काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपने कॉलेजेस के एग्जामिनेशंस को कैंसिल कर दिया है. CBSE ने खुद 250 स्कूल जो उसके अब्रॉड हैं उनके एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया है और स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया है ऑल्टरनेटिव बेसिस के ऊपर. अब आपको देखना है कि ये CBSE जो है जुलाई के फर्स्ट और सेकेंड वीक में एग्जाम कराना चाह रहा है, तो इसके लिए पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी गई है CBSE के अगेंस्ट कि वो एग्ज़ाम को कैंसिल करें. जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली थी जिसमें उन्होंने टाइम टेबल दिया था कि 1 से लेकर 15 जुलाई तक एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जाएगा, उसके अगेंस्ट ये पिटीशन यहाँ पे फाइल कर दी गई है. तो ये जो है ये हमारे इंस्टीट्यूट से इसका कुछ लेना देना नहीं है, बट स्टिल आई एम टॉकिंग एंड डिस्कसिंग दिस न्यूज़. आई विल टेल यू वाई. नाउ मूविंग अहेड,
स्टूडेंट की कुछ क्वेरीज आई, मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे पूछा स्टूडेंट से, स्टूडेंट की क्वेरी आई, स्टूडेंट पूछता है मेरे से आफ्टर दिस नोटिफिकेशन व्हाट अबाउट ओल्ड सिलेबस फाइनल एग्जाम अटेम्प्ट्स। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, सो दिस प्रॉब्लम इज देयर इन द नोटिफिकेशन सर एंड मैम। Sir, I am old course student and if I give exam in July and fail, then I can give exam in November again or not. Please help, sir. Now this again, same concern I have already discussed previously. Now, यहाँ पे ये पूछते हैं, sir, can you clarify these points? Suppose I choose opt in. मैंने choose किया कि मैं exam दूंगा and gone for the center to give paper. First paper done, second also done, and now get to know that these areas is in contamination zone. Okay, so will they check my paper or not? Great question. Suppose they check and in any subject I got 60 plus marks, will I'll be eligible for that exemption? As per rule of ICI, if you want exemption, you have to definitely sit for all the papers of the group. तो ये काफ़ी बढ़िया एक डाउट स्टूडेंट ने पूछा है और इसके ऊपर मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट को सोचना चाहिए। उनको एक FAQ विंडो भी साथ में खोलनी चाहिए थी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो उन्हें लगता है वो बना करके उसका सोल्यूशन डालते, प्लस यहाँ पे एक डाउट विंडो वो ओपन रखते जहाँ पे वो स्टूडेंट की क्वेरीज और डाउट्स को लेते। ऐसा नहीं किया गया इंस्टीट्यूट के द्वारा। आई होप कि आने वाले दिनों में इंस्टीट्यूट इसके ऊपर काम जरूर करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लुकिंग एट द कोविड सीन्स एंड द कंसर्न्स ऑफ ICI, व्हाट इज द मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ICI? सबसे पहला जो दिक्कत का मुद्दा है सभी के लिए है, वो चाहे ICI हो चाहे कोई और संस्थान हो जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहता है इस सिचुएशन के अंदर, वो ये है सर कि स्टूडेंट्स कैन बी साइलेंट कोरोना कैरियर्स। स्टूडेंट कैन बी साइलेंट कैरियर्स ऑफ कोरोना बिकॉज दे आर यंग। ओके, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, बीमारी ज़्यादा नहीं होती। दे कैन be silent carriers of corona and they can spread the disease to other people who are present at the center, because opening up of the exam center, opening up of schools, colleges, this will lead to opening up of an institution that not only involves just the students but all the other facilities that are related to them. Then next concern is that green zones turning red overnight. Now this is also very true, this can also happen. Okay, now institute is concerned about it and everybody who is thinking to take exams is really concerned about it. Then long duration of exams, because C exams they long for 3 hours and you have to be mentally alert all the time. There is आपको बहुत कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे चाहिए एंड यू आर सिटिंग विद अ मास्क ऑन योर फेस एवरी टाइम। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, प्रॉब्लम होती है सोचने में, सिर में दर्द भी होने लग जाता है। ग्लव्स पहन के मास्क देख रहे हैं तो ये भी बहुत एक डिफिकल्ट सिचुएशन स्टूडेंट को यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती है। CA एग्जाम्स स्पेसिफिकली दे आर नॉट अ सिंगल डे अफेयर सर एंड मैम, दे आर नॉट अ सिंगल डे अफेयर कि एक दिन एग्जाम होगा उसके बाद स्टूडेंट चला जाएगा, एग्जाम नहीं होगा। दिस इज नॉट अ सिंगल डे अफेयर सर एंड मैम। आवर एग्जाम्स दे रन फ्रॉम 8 to 16 डेज। अगर आपने एक ग्रुप दिया है तो 8 दिन चलेंगे, नहीं तो 8, 9, 10 दिन, और नहीं तो अगर दोनों ग्रुप दिए हैं तो 16, 17, 18 दिन भी चल सकते हैं एग्जाम्स। सो इट इज नॉट अ सिंगल डे अफेयर। इंस्टीट्यूट हैज टू बी very vigilant on these points. Then there are states which are not allowing centers to the institute and this is true. Okay, so there are states that are not allowing centers to the institute, so this is also a matter of concern and there can be a lot of matters that can crop up as this is an unprecedented issue we are facing in the name of COVID-19 sir and ma'am. So ऐसी बहुत सारी problems और उठ करके आ सकती हैं। अगर हम डिस्कशन करेंगे तो सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहेंगे, प्रॉब्लम की लिस्ट बनती रहेगी। बट वी एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर नॉट प्रॉब्लम प्रोवाइडर्स, वी आर सोल्यूशन प्रोवाइडर्स सर एंड मैम। और यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं स्टूडेंट को आज बता सकूं कि बेटा आपको क्या करना है, राइट? अब आपको क्या करना है, बिकॉज यू कैन नॉट एवरी टाइम कीप ऑन डिस्कसिंग द सेम मैटर। ओके, चलिए। Now what is stopping ICI from cancelling the July attempt? ICI क्यों नहीं आकर के सीधा बोल देता कि जुलाई का अटेम्प्ट कैंसिल हो गया? इसके भी रीजंस हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, वहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो। स्टूडेंट चाहते हैं, ठीक है, और अगर 2 लाख स्टूडेंट में से 2000 स्टूडेंट भी ऐसा सोच रहा है कि एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, कंडक्ट हो जाना चाहिए, और ये जनरली
ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं, सीए फाइनल के स्टूडेंट्स जो अपने लीव्स को लेकर के कंसर्न्ड है, अपनी ट्रेनिंग को लेकर के कंसर्न्ड है, काफ़ी टाइम से काफ़ी पढ़ाई कर चुके हैं ऑलरेडी एंड दे वांट नाउ दैट एग्जाम्स ले लिए जाएं और उनका बर्डन सॉल्व हो जाए, फिर आगे वो जो भी उनका रिजल्ट होता है उसके बाद वो लोग डिसाइड कर सकें, राइट। तो यहाँ पे वो स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं, एंड ICAI एज अ बॉडी इट हैज टू बी फेयर टू बोथ द कंसर्न्स ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट ये भी चाहते हैं एग्जाम ना हो, स्टूडेंट चाहते हैं एग्जाम को कैंसिल करके आगे फॉरवर्ड कर दिया जाए, और दूसरे स्टूडेंट हैं वो चाहते हैं कि एग्जाम सर ले लिए जाए। तो यहाँ पे जो ऑप्ट आउट लेकर के आया है ICAI ने फेयर इनफ होकर के दोनों स्टूडेंट की नीड्स को यहाँ पे आंसर करने की कोशिश की है सर। उसके अलावा ICAI सीधा आउटराइटली मना इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ICAI इज स्टिल एनालाइजिंग दिस सिचुएशन। वो CBSE को देख रहा है, वो और संस्थानों को देख रहा है, वो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को देख रहा है जो कि अपने एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने की बात कर रहे हैं। ICAI is still analyzing the situation. They have not taken a final call. They are still telling you कि 1 जुलाई के बाद हम डिसाइड करेंगे, MHA गाइडलाइंस आएंगी फिर हम डिसाइड करेंगे। तो चीजें वो भी एनालाइज कर रहे हैं सर। तो यहाँ पे इसलिए ICAI सीधा आकर के नहीं बोल सकता कि कम ऑन ओके गिव द एग्जाम्स इन नवंबर। देन अगेन ICAI ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या चाहता है ICAI वॉन्ट्स टू नो, दैट इज वाई दे हैव गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू यू कि आप बता दीजिए। दे वॉन्ट टू नो द एग्जैक्ट नंबर्स who wish to give the exams and who do not. So that is they want a fair analysis. उन्होंने आपके पार्ट से ये चीज इंफॉर्मेशन यहां से लेने की यहाँ पे कोशिश इंस्टीट्यूट ने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What I think could have been a better solution than this notification and outrightly coming out and telling the students to opt out. मेरे हिसाब से उन्हें क्या करना चाहिए था, they should have opened an opinion seeking window, okay, फॉर अ बेटर एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, जिसमें वो डेटा को कलेक्ट करते और यहाँ पे जो डेटा आता उसमें बच्चे फेयर अपना एनालिसिस वहाँ पे भरता कि वो एग्जाम देना चाहता है या वो एग्जाम नहीं देना चाहता, और उसको भरने के बाद इंस्टीट्यूट के पास जब ये डेटा आ जाता तो वो वहाँ पे डिसाइड करते कि अब हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव नोटिफिकेशन वहाँ पे लेके आते हैं, अनाउंसमेंट कॉम्प्रिहेंसिव वहाँ पे दे वुड हैव कम आउट विद। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था। चलिए नहीं हुआ वो कोई बात नहीं, बट आगे बढ़ते हैं। हमें सोल्यूशन की तरफ जाना है, हमें प्रॉब्लम्स को बारी बारी डिस्कस नहीं करना, हमें सोल्यूशन की तरफ जाना है। स्टूडेंट कहते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वी शुड स्टार्ट टू लिव विद द वायरस, वी शुड स्टार्ट लर्निंग टू लिव विद द वायरस। हमें अब इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा। बिल्कुल ये सही बात है, हमें अब इस वायरस के साथ जो है जीना सीखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिन तक सभी चीज़ों को बंद करके रोक करके नहीं रखा जा सकता। लेकिन एज फार एज योर CA एग्जाम्स आर कंसर्न, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं सर, जान है तो जहान है, ठीक है। CA में कौन कब किसका सीनियर हो जाए किसी को नहीं पता, इसलिए CA एग्जाम्स के लिए आप 6 महीना डेफर कर सकते हैं विदाउट थिंकिंग, विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट। परेशान मत होइए, इस चीज में मत फंसिए। डू नॉट कंपेयर दैट योर फ्रेंड विल बी एबल टू अपीयर बिकॉज उनके वहाँ पे सिचुएशन ठीक है और वो एग्जाम दे सकते हैं, बट मैं नहीं दे सकता, वो मुझसे 6 महीने पहले जो है CA बन जाएंगे। प्लीज़ डू नॉट कंपेयर, बिकॉज जान है तो जहान है। CA स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली मैं कह रहा हूँ, हाँ हमें वायरस के साथ जीना सीखना पड़ेगा। ये WHO भी कह चुका है, ये बहुत लोग कह चुके हैं, और ये करना पड़ेगा क्योंकि ये जल्दी से जाने वाला है नहीं, 1 साल 2 साल पता नहीं, गॉड नोज। ओके, देन 6 महीने 6 months विल हार्डली मैटर इफ यू आर हेल्दी एंड सेफ। तो CA स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक मेरी यही एडवाइस है कि आप इतना मत सोचें इस पॉइंटर के ऊपर। यस, वी ऑल शुड लर्न टू लिव विद द वायरस, वी ऑल विल हैव टू लर्न टू लिव विद द वायरस बिकॉज दिस इज गोइंग टू स्टे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरी ओपिनियन की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देख लीजिए, पढ़ता हूं मैं। इवन इफ यू हैव एन आयोटा ऑफ डाउट, इत्तू सा भी डाउट है ना आपको कि सर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इत्तू सा भी, ये वो तो बोलो मत एंड सीधा ऑप्ट आउट ऑप्शन को चूज कर लो। इंस्टीट्यूट ने आपको, इतने दिनों से आप बोल रहे हो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, इंस्टीट्यूट ने बोला कैंसिल, गो एंड कैंसिल, दैट्स इट, सिंपली ऑप्ट आउट। इत्तू सा भी डाउट नहीं रखना दिमाग में, ठीक है। चलिए, एंड इफ यू विश टू ऑप्ट इन, आपने सोचा कि नहीं सर मेरे को तो एग्जाम देनी है, डिसाइड कर लो, एक दिन पूरा इस पे दे दो, अच्छे से सारे ऑप्शंस को एनालाइज कर लो एंड फॉरगेट टिल फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। जब तक इंस्टीट्यूट का कोई और नोटिफिकेशन नहीं आता, आप ऑप्ट इन कर लिया, आप अपनी पढ़ाई को वापस से करने लग जाओ और अपना काम करते रहो, पढ़ते रहो, भूल जाओ बाकी डिस्कशंस को। एग्जाम होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, केस बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, कुछ नहीं,
अपनी सिचुएशन एक बार आज की डेट में एनालाइज करके, हाँ भाई मेरे को तो ऑप्ट इन करना है, दैट्स इट, वॉट एवर हैपेंस आई विल ऑप्ट इन। बाद में देखी जाएगी, रेड होगा तो पता लगेगा ना इंस्टीट्यूट को, मैं भी लिख के दूंगा इंस्टीट्यूट को, रेड हो गया भाई मैंने ऑप्ट इन किया है, व्हाट विल हैपन। ओके, तो इस तरीके से अभी आप उस चीज में ना फंसे, अभी आप डिसाइड कर लें, एक दिन दे करके, 2 दिन दे करके, ठीक है, 17 से 20 में जब खुल रहा है तो 18 तारीख तक डिसाइड कर लें, 19 तारीख तक डिसाइड कर लें, राइट। और फिर जो है भूल जाएं सर, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक भूल जाएं, अपनी पढ़ाई को वापस से यहां पे कंटिन्यू कर लें। उसके बाद मेरी एक ओपिनियन है, मेरा एक सुझाव है उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने केवल सिंगल ग्रुप के लिए ऑप्ट किया हुआ है, जिनके दोनों ग्रुप बच रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका केवल एक ही ग्रुप होता है, तो वो तो दे सकते हैं एक ग्रुप। जिनके दोनों ग्रुप बच रहे हैं, बोथ ग्रुप्स आर पेंडिंग एंड हु हैव ऑप्टेड फॉर अ सिंगल ग्रुप, ओके, मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप ऑप्ट आउट कर जाएं और दोनों ग्रुप के लिए स्टार्ट कर दें अपने प्रिपरेशन को नवंबर अटेम्प्ट के लिए। मेरी तो उनको यही सलाह रहेगी जो लोग एक ग्रुप के लिए यहाँ पे ऑप्ट करके बैठे हैं, राइट, जिनको जुलाई में एक ग्रुप ही लिखना था। मैं उनको ये सलाह दूंगा कि अभी फालतू में रिस्क में पढ़ने की जरूरत नहीं है और परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा डिस्कशन में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप लोग ऑप्ट आउट कर जाइए और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन जो है दोनों ग्रुप की यहाँ पे शुरू कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप ऑप्ट इन करते हैं तो आपको किन फैक्टर्स को दिमाग में रखना चाहिए। सबसे पहला फैक्टर है सर कोमॉर्बिडिटीज़। कोई भी आपको खांसी जुकाम कुछ इन्फेक्शन ऐसा ज़्यादा हो जाता है, कोई आपकी ऐसी टेंडेंसी है, कोई ऐसी बीमारी है, आपको अस्थमा है, सांस से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, कुछ भी है, या कोई और बीमारी है फॉर दैट मैटर, प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू गिव दी अटेम्प्ट, ओके। प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। अपने एरिया को ढंग से एनालाइज कर लें। अब मैं एरिया बोलता हूँ तो यहाँ पे रेजिडेंशियल और सेंटर वाला एरिया दोनों को देखें कि आपका सेंटर कितना दूर है, योर ट्रैवल टाइम इन्वॉल्व एंड द डिस्टेंस टू द एग्जाम सेंटर, ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी कंसिडर्ड। आप अपने खुद के जज हैं सर, यहाँ पे बहुत पेशेंटली डिसीजन लेने की ज़रूरत है। मैंने सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया है एंड आई होप दैट आई हैव ट्राइड टू गिव अ पॉजिटिव पिक्चर, अ गुड पिक्चर, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिप्रेस करने की किसी को कोशिश नहीं की है कि बच्चे डिप्रेस हो जाएं वीडियो को देख करके। आपको एक बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग यहाँ पे करनी चाहिए एंड आई ऑलवेज से दैट यू पीपल आर सो ऑसम। प्लीज डू स्प्रेड सम गुडनेस एंड हैप्पीनेस। स्टॉप डिस्कसिंग, इन डिस्कशंस में फंसना छोड़िए। लंबे लंबे ट्विटर पे पोस्ट डालना, यहाँ वहाँ टेलीग्राम और यहाँ वहाँ जाना छोड़िए, राइट। इन डिस्कशंस को ख़त्म करिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान करिए सर। स्टार्ट वर्किंग एंड स्टॉप डिस्कसिंग। आई होप कि आपको मैंने जो पॉइंटर्स डिस्कस किए उन सब से आपको हेल्प मिलेगी एक अच्छा बैलेंस्ड डिसीजन लेने के लिए। हम यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए नहीं है सर, हम चार्टेड अकाउंटेंट्स बनने जा रहे हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स बनने जा रहे हैं, हम प्रॉब्लम क्रिएटर्स नहीं बनने जा रहे। इंस्टीट्यूट इज वर्किंग फॉर यू, ठीक है। इतने सारे एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, वो चिल्ला चिल्ला करके वीडियो बना करके इंस्टीट्यूट तक अपनी आवाज़ पहुंचा देंगे। आप अपना काम करते रहिए, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आपके अधिकारों के लिए लोग लड़ रहे हैं। आप इंस्टीट्यूट भी जानता है, स्टूडेंट लाइव्स दे मैटर। आप हमारे देश का भविष्य हैं सर, समझिए इस बात को। पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखें, थोड़ा सा फेथ रखें भगवान में, थोड़ा सा फेथ रखें अपने आप पर। चीज़ें बेहतर होंगी, अच्छी होंगी, आने वाला कल बेहतर होगा, अच्छा होगा। इसी सोच के साथ आगे बढ़ें। लोग आपकी आवाज़ पहुंचाने के लिए बैठे हैं वहाँ पे। इंस्टीट्यूट भी समझ रहा है, इंस्टीट्यूट भी समझ रहा है। यहाँ वहाँ आप इंस्टीट्यूट को गालियाँ बकते हैं, इंस्टीट्यूट के बारे में बुरा उल्टा सीधा लिखते हैं, मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। जो इंस्टीट्यूट के ऑफिस बेरर्स हैं वो कुछ ट्वीट कर देते हैं, बच्चे उनका मजाक बनाते हैं, बच्चे उनके नीचे अंट शंट चीज़ें लिखते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है। वो भी लोग एनालाइज कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन आज तक कभी नहीं हुई है हिस्ट्री में जिसमें इतनी प्रॉब्लम जो है मैनकाइंड को हुई है, राइट। और पहले भी हुई थी तो जब चीज़ें दूसरी थी, जब सिचुएशंस दूसरी थी। हर एज की अपनी क्लॉक होती है, हर एज की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम जिस एज में हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, राइट, लेकिन हमें एक मैच्योरिटी से डील करना आना चाहिए। आप लोग चार्टेड अकाउंटेंट्स बनने जा रहे हैं, सोल्यूशन प्रोवाइडर्स बनने जा रहे हैं। आपको समझना होगा एक सिस्टम किस तरीके से काम करता है। हर चीज़ की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हर चीज़ के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं डिफरेंट एरियाज पे, डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। वो सारी चीज़ें होती हैं। हर बॉडी की कुछ
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सब चीज़ें होती हैं, उन सब को देख करके डिसीजन मेकिंग की जाती है। तो स्टॉप क्रिटिसाइजिंग एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग एंड स्प्रेडिंग गुडनेस, राइट, स्टार्ट वर्किंग एंड स्टॉप डिस्कसिंग। पढ़ाई पे फोकस करिए। एंड मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, यू पीपल आर सो ऑसम, आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं सर, एंड इन डेज टू कम यू विल डू ग्रेट एंड वंडरफुल थिंग्स। थैंक यू सो मच, मुझे इतनी बातें करनी थी आप लोगों से। थैंक यू सो मच, हैव एन ऑसम डे, एंजॉय, थैंक यू।